mention the caption also. First of all, you have to save this particular table. Okay. Table. I have created table 1. Okay. Then I have to give the name table2.html. Okay. Table2.html. Save this particular file and run this particular file. Okay. This file is stored in HTML folder. I have given the name table2. Table2. Open with Google Chrome. Okay. This is a particular table. I have defined heading and data. Clear? And same, I am copying this particular data for second row. ओके सेकेंड रो के लिए हम फिर से कॉपी कर रहे हैं. यहाँ पे सेकेंड रो क्रिएट कर रहे हो आप. यहाँ पे सेकेंड के लिए आपने मेंशन किया 102. ओके 102 एंड सेकेंड नेम इज अमित. आफ्टर दैट डिफाइन द मार्क्स. सेव दिस फाइल एंड अगेन यू हैव टू प्रेस F5. क्लियर? हेलो. Yes, ma'am. आज आप इंटरेक्टिव नहीं कर रहे हो, क्या हुआ? हेलो एवरीवन. आप सबको इंटरेक्ट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? यस मैम. ओके. बॉर्डर जो है उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं. यस सचिन, यू आर सेइंग समथिंग. Yes. Yes. Have you got all the particular points? Yes, ma'am. Okay. Yes, this is a very simple table. I have created very simple table here. Just you have to mention table border. Suppose आपने यहाँ पे table border define नहीं किया, ठीक है? Just आपने यहाँ पे table दे दिया, save किया और इसको run किया. ठीक है? जब आप इसको रन करोगे तो ये टेबल बॉर्डर विजिबल नहीं होगा. ठीक है? तो जस्ट यू हैव टू मेंशन डिफाइनिंग ए बॉर्डर आल्सो. ओके, यू हैव टू मेंशन बॉर्डर इक्वल टू फॉर थिकनेस. मैंने यहाँ पे मेंशन किया 2. ओके, अगर आप यहाँ पे डबल कोट्स नहीं भी लगाते रन तब भी करेगा. डोंट वरी फॉर दिस, बट दिस इज वेरी गुड हैबिट. यू हैव टू मेंशन इन कोट्स आल्सो. ओके. Yes, next you have to define a table caption. Table caption means you can define the name for table. Like I am mentioning this particular table is student table. Students table, yes, student data. Okay, and close this caption. Yes, this is a particular student data, a student table. Here, I have mentioned only 2 records. Here, particular point. Yes. Next is cell spacing and cell padding attribute. What do you mean cell spacing? Cell spacing attribute defines space between table cells. Okay. And cell padding represent the distance between cell border and the content within a cell. Okay, just you have to mention cell spacing. First of all, you have to mention cell spacing. Cell spacing का meaning क्या होता है? आपको कहाँ define करना है? देखो cell spacing मैंने यहाँ पे mention किया cell spacing equal to 5. Okay, and after that you have to define cell padding equal to 5. Okay, cell spacing means क्या होता है? 2 cells के बीच में जो gap होता है. और cell padding means क्या होता है? जो border and content के बीच में जो gap है is called cell padding. Just you have to save this particular file and run it and see the difference. Okay. This is a particular cell, cell 1, cell 2, and this is the gap. This is a particular cell spacing and cell padding means border and content के बीच में जो space है उसको हम cell padding कहते हैं.
Okay, clear? And suppose you have to define a particular color also. You can define in BG color. In whole table, you can set the color yellow. Save this file and this is a particular yellow table. Okay, we can set any color, but you have to change the particular color for heading, different heading. Just you have to mention in PH. Okay, आप PH के अंदर डिफाइन करेंगे तो अलग अलग हेडिंग्स दे सकते हो. जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया BG कलर इक्वल टू ब्लू. Okay, and same you have to change BG color equal to green. Okay, and we can also change the marks color. Okay, अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो. BG color equal to red. Clear? Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's Yes, ma'am. clear. Yes. Yes, ma'am. Very good. Yes, ma'am. Yes, cell spacing and cell padding attribute we have done. Next is, मैडम एक क्वेरी थी. yes, यहाँ टेबल का बॉर्डर कलर कैसे चेंज कर सकते हैं? बॉर्डर में कलर नहीं कर सकते. बॉर्डर में कलर आप CSS के थ्रू कर सकते हो, बट यहाँ पे नहीं कर सकते. ठीक है मैडम. कल असाइनमेंट करते समय जो पिक्चर इंसर्ट कर रहा था उसका भी बॉर्डर कलर चेंज करने की कोशिश करा, आपने किया था, मुझसे नहीं हुआ मैम. हेलो, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. मैडम पिक्चर जो इंसर्ट करते हैं उसका भी बॉर्डर कलर चेंज होता है, उसके लिए कौन सा टैग यूज करेंगे? आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट. यस, कोई मुझे बताएगा ये क्या कह रहे हैं? हेलो, ये क्लियर नहीं है क्या मेरी? आप ये चैट में लिख के सेंड करो. चैट में मैसेज सेंड करो, जो पर्टिकुलर मैसेज करना चाह रहे हैं अपने चैट में करो. ओके, चलिए अब आगे देखिएगा. नेक्स्ट हम इसमें कवर करेंगे कॉल स्पैन एंड रो स्पैन एट्रीब्यूट. ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, इसी में ही आपको कवर करना है टेबल में. Call span attribute is used to merge two or more columns into single column. Okay, and row span attribute is used to merge two or more rows. Okay, let's do this particular. Yes. Border color for image. Okay, border color for image, we can't change the border color in HTML. We can use CSS. Okay, in CSS we can change the border colors. Various types of border we can change in only CSS. We can't change in HTML. Okay, HTML we can create, in HTML we can create only static web page. We can't change dynamic. Okay, we can change the particular background like color, but we can't change the other styles also. Okay, next we will cover cell spacing, we have covered, and cell padding. Next we will cover the particular style. Particular style means you have to mention row span and call span. Okay, I am explaining this particular style. आपने क्या मेंशन करना है? आपको टेबल क्रिएट करना है. यू हैव टू क्रिएट ए पर्टिकुलर टेबल इन दिस फॉर्मेट. ओके, दिस आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल हेडिंग एंड डेटा. I have mentioned roll number, name and marks.
ओके, एंड सपोज आपको मेंशन करना है यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ऊपर हेडिंग मेंशन करना है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसमें आपके 3 कॉलम्स मर्ज हुए हैं, है ना, 3 कॉलम्स को मर्ज करके आपने मेंशन किया है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। फॉर दिस क्या करोगे? यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट ए PR, okay, PR table row, you have to define table heading, okay, and after that you have to define a particular call span, जिसमें 3 columns को span किया है, call span equal to 3, इसमें हमने 3 columns को span करके क्या मेंशन किया है? list of students, clear? You have to close TH and close PR, clear? अब देखो इसको जब आप रन करेंगे, दिस इज ए पर्टिकुलर सेल्स, ओके, हमने यहाँ पे किसको मर्ज किया है? 3 कॉलम्स को, 3 कॉलम्स को मर्ज करने के लिए यू हैव टू राइट TH call span equal to 3 list of students, this is a particular heading. Have you got, everyone, you got this particular point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में आपके डिफरेंट टेबल्स आती हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कॉल स्पैन। एंड नाउ अब आपको चेंजेस करनी है, ठीक है, अब आपको यहाँ पे मेंशन करना है, सपोज वी हैव टू क्रिएट ए टेबल लाइक दिस टाइप, आपको टेबल क्रिएट करना है। One thing, call span actually it's a merge of all 3 columns, right? Yes, But yes, if we want to merge the only 2 columns, then yes, then what we should do? That means it's an additional question. If yes, you we can mention, we can change the particular, accordingly we can change. Suppose you want to particular merge 2 columns, just you have to mention call span equal to 2. Okay, Then आप it यहाँ will पे take call span equal to, देखो आप यहाँ पे कॉल स्पैन इक्वल टू 2 करते हैं, तो इसमें 2 कॉलम्स आपके स्पैन हुए, 2 कॉलम्स आपके मर्ज हुए, ओके, जैसे रोल नंबर एंड नेम, ठीक है, आपके सिर्फ 2 पर्टिकुलर कॉलम्स मर्ज होके लिस्ट ऑफ स्टूडेंट मेंशन हुआ, क्लियर? आपने यहाँ पे मेंशन करना है अकॉर्डिंग टू डेटा, मैम इसमें अलाइनमेंट ओके, क्या सेंटर के लिए? हैव यू गॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट? यस मैम। yes. Understand? Please tell me. Yes, Yes. ma'am. If I have to merge from 2 and 3, madam. Got it, ma'am. Yes. If I have Yes, to merge Nitin, only क्या कह रहे हैं? two, if I have to merge only 2 and 3 column only. नहीं, हम अपने accordingly we can change. We can set the particular merge according to data. We have 3 fields here. Okay, we have 3 fields here, so you have to merge 3 fields only. Okay. Now we have to create this particular style. Sorry, ma'am. Actually, Sachin wants to know if he wants to merge 2nd and 3rd column, then what we should change in the syntax. Yes, very good point. आपको मर्ज करना है कौन सा? 2nd and 3rd, Yes. है ना, 2nd and 3rd को मर्ज करना है ना आपको? Yes, ma'am. Yes. यस यस, अगर आपको यहाँ पे 2nd and 3rd को मर्ज करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आफ्टर रोल नंबर, ओके, देखो आफ्टर रोल नंबर, जो रोल नंबर है आपका यहाँ पे इसके अंदर आपको मेंशन करना है, ठीक है। अब सपोज करो, बहुत अच्छा वैलिड क्वेश्चन है ये, कि आपने यहाँ पे इसके अंदर सिंपल पहले आपको क्या मेंशन करना है, इसके अंदर TH, ठीक है,
मैंने यहाँ पे मेंशन किया TH और सिंपल आपने यहाँ पे दे दिया इसके अंदर क्लोजिंग कर दिया TH, ठीक है। आफ्टर दैट कॉल स्पैन इक्वल टू 2। देखो आपके पास यहाँ पे 2 पर्टिकुलर सेल्स 2 एंड थर्ड सेल्स आपके मर्ज हुए हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वाला आपका मर्ज नहीं हुआ। यू कैन राइट एनीथिंग फॉर इट, Copy learn. ओके। लाइक आपको यहाँ पे डेटा कुछ भी लिख दिया, आपने डेटा लिख दिया एंड आफ्टर दैट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को आपने मर्ज कर दिया, तो ऐसे आप शो करोगे। Great. Clear? Thanks. ओके अब देखो नेक्स्ट आपको क्या राइट करना है। अब मुझे यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंट वे में टेबल क्रिएट करना है, ओके। यू हैव टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर स्टाइल। प्लीज ध्यान से नोट करिए, देखिएगा। दिस इज ए पर्टिकुलर टेबल, roll number. You have to write roll number. This is a heading and this is a particular term. Roll number and this is a term. Okay? यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 पर्टिकुलर रोज को मर्ज किया है, रो, ओके। 2 रो को मर्ज किया है, तो पर्टिकुलर रोल नंबर मेंशन किया है, सेम 2 रोज को मर्ज किया और टर्म लिखा है, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 कॉलम्स को मर्ज किया है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन किया है सब्जेक्ट्स, ओके। ये है आपका हेडिंग मार्क्स, ओके। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आपका सीधा नहीं आता, ओके। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ओके। जस्ट यू हैव टू क्रिएट ऑल द पर्टिकुलर हेडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर हेडिंग्स। आफ्टर दैट वी विल क्रिएट टेबल डेटा, ठीक है। क्या करोगे इसके लिए, सोचो क्या करोगे। आपको ये वाला पर्टिकुलर स्टाइल करना है, तो क्या करेंगे इसके लिए। ये वाला तो मैं हटा देती हूँ। Ma'am, first of all, there are total 5 number of columns. Yes, very good. First of all, you have to create a table TH. देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 रोल नंबर 1, यहाँ पे 2, 3, 4 मार्क्स एंड 5। वेरी गुड। यहाँ पे आपके पास आएगा कॉल स्पैन इक्वल टू 5, ठीक है, जिसके अंदर मेंशन होगा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर? आफ्टर दैट यू हैव टू क्रिएट TH, अनदर PR। फिर आपको करना है यहाँ पे TH टेबल हेडिंग, ठीक है। टेबल हेडिंग के अंदर आपको क्या मेंशन करना है, देखो यहाँ पे आपके पास है रोल नंबर, ओके। रोल नंबर इज हियर, सो यू हैव टू क्रिएट ए पर्टिकुलर 2 रो स्पैन्स आपके मर्ज हुए हैं, तो क्या करना होगा, रो स्पैन इक्वल टू 2, ओके। row span equal to 2 and you have to write for roll number. This is a particular heading, close this heading. After that, second you have to create particular TH and after that you have to create a particular marks. Marks में आपके 3 columns merge हुए हैं, तो आप you have to mention call span equal to 3, okay. Call span equal to 3 and you have to write marks, okay. After that close TH, again TH and you have to write term. For term you have to mention, again you have to mention row span equal to 2, okay, and you have to write term. This is a particular heading, close this heading, okay, and close TR. First TR you have to close, okay. आपके यहाँ पे first TR close हो गई, again you have to write marks heading like आपका English, Hindi, Maths, okay. And you have to create another row.
PH, and just you have to define the heading, English, and maths. And close this here. Save this particular file, okay, and run this table. Yes, this is the particular style, okay. Have you got this particular style? This is a very very important, very. अगर आपको ये चीज अच्छे आपको अगर अच्छे से ये चीज समझ आ गई है तो आप इजीली कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हो. Any type of table you can create. Okay, row span, col span. Again, you have to mention row span according to style. Okay, according to the style, you have to mention the particular col span and row span. ठीक है. अब इसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं. मुझे यहाँ पे डेटा टाइप करना है 1001, ओके, एंड यहाँ पे आपको मार्क्स राइट करने हैं. यू हैव टू राइट द पर्टिकुलर मार्क्स, टर्म 1 एंड टर्म 2. टर्म 2 के एंड टर्म 1 के मार्क्स आपको ऐड करने हैं. अब मुझे आप बताएंगे मैं क्या लिखूं यहाँ पे. यस, प्लीज टेल मी. Now first we'll create a table head with 2 row span. 1001 content. Very good. First of all, you have to mention TR. After that, you have to define TD, table data. Okay. For table data, you have to define row span. Okay. Row span equal to 2. इसमें हमने 2 रो को स्पैन किया है और मेंशन किया है 1001. Okay, and after that close TD. Okay, after that very simple TD. TD के अंदर जस्ट आपको मार्क्स पुट करने हैं. Here. क्लोज किया. देखो आपने यहाँ पे मार्क्स डाले हैं T1 के मार्क्स. आप जस्ट यू हैव टू मेंशन अगेन TD एंड T1. क्लोज दिस TD एंड क्लोज TR. ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू क्रिएट another TR for what? Why particular again TR we have used here? For the next row. For next row. For next row. Very good. Okay, we have span, we have particular merge 2 particular rows. You have to mention 2 TRs here. Okay, आपको 2 TRs mention करने हैं. देखो यहाँ पे mention करना है आपने first 1001 के accordingly row span. And this is a particular first T1 marks and second term marks T2. Okay. Yes, ma'am. Yes, everyone got this particular point. Understand? हुआ या नहीं हुआ? Ma'am, can you please make it smaller so that we can see the all codes once? Yes. It's visible? Yes, ma'am, it's visible. Okay. I don't know where I am doing mistakes. Actually, my table is not like your table. It is something weird. Yes.
Yes, Shashikant, yes, you are yes. saying something? Yeah, actually, I want to say that my table is not like your table. I don't know where I am doing mistake. Can you share your screen? Yes. Yes, please share the screen. Let me wait. Where is my table? Fast. Yeah, 1 second. Yes. Yes, this one is. Okay. Is that visible? Yes, yes. The second one, what I don't know. आपने मिस्टेक में कभी ऐसा आ रहा है डेटा अपना दिखाओ कोड दिखाओ Yeah, this is the code. कैन यू एनलार्ज दिस पर्टिकुलर कोड He has used call span. Row span तो use ही नहीं किया. फर्स्ट टाइम यूज होना चाहिए. So this is the second table. This is the second table, and I wanted to do like what you have asked to prepare, and the first row, I don't know where I have done mistake. Sir, you have used th call span too. You should have used देखो ये row span. कोड प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा आपका वहाँ पे row span use होना था. आपको मैं ये पूरा कोड दे रही हूँ चैट में आप इसके अंदर पूरा कोड दे रही हूँ मैं आपको Okay. चैट में दे रही हूँ पूरा कोड आप वहां से भी देख सकते हो रोल नंबर और टर्म के लिए ड्रेस टाइम होना चाहिए ना. यस Yeah, I got that. Let me take this. यू कैन मैच दिस पर्टिकुलर कोड ओके Okay. Stopping share. यस आप ये मैच कर सकते हो कोड पूरा ओके आपने बोला Okay. यस मेरा सामान आप मुझे भी दे सकती है दीदी मेरे पूछे चलिए म्यूट कर लीजिए एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ यस we can create any type of table styles we can use any type of style this main particular table आपका ये था जिसके अंदर आपको row span call span and cell spacing we can also set the particular image okay in a particular table आप इसके अंदर अगर आपको टेबल के अंदर इमेज सेट करनी है तो इमेज भी सेट कर सकते हो ठीक है वी कैन क्रिएट आल्सो नेस्टेड टेबल्स ओके तो अलग अलग स्टाइल की अलग अलग टाइप की टेबल्स वी कैन क्रिएट ओके नेक्स्ट वी विल कवर एक सेकेंड एक बार मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर देती हूँ प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो पहले आपकी अटेंडेंस प्रॉपर हो नहीं पाई थी प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो एवरीवन Yes. Very good. Next we will cover, I am changing the screen.
प्लीज डोंट लेफ्ट योर मीटिंग, अदरवाइज आपका ही इसमें लॉस रहेगा, आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई तो आपकी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। मैम अटेंडेंस का पता कैसे चलेगा कि हमारी अटेंडेंस शॉर्ट होगी तो एग्जाम नहीं दे पाएंगे आप। अगर आप अटेंडेंस प्रॉपर वे में अटेंड करेंगे क्लासेस तो नेचुरल सी बात है आपकी अटेंडेंस जा रही है इग्नो में, ठीक है। हमें कैसे पता? चलिए देखिए, ओके। नेक्स्ट वी विल क्रिएट फॉर्म इन HTML, ओके। एंड फॉर्म क्या होता है बेसिकली, यू नो वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्म वी कैन फिल, ओके। वी विल फिल वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्म। सपोज ऑनलाइन फॉर्म आप फिल करते हैं, लाइक आपने कोई रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपने फॉर्म फिल किया है ना, या आप कोई भी पर्टिकुलर फॉर्म फिल करते हैं, तो वी कैन क्रिएट एनी टाइप ऑफ फॉर्म इन HTML, ओके। फॉर्म इज यूज्ड टू एंटर डेटा or information such as name, email address, password, phone number, okay, address, normal address, okay, etc. We can use a particular radio buttons, okay, check boxes. Form will take input from site visitors or users, okay. For creating any type of form, we use form tag. Form tag is used to create an HTML form, okay. Form tag create करने के लिए you have to mention form tag. First of all, you have to mention form and various types of form attributes, okay. Input define and input control, okay. We can define any type of labels also. Just you have to mention label tag for this, okay. Label is define a label for an input elements. You have to mention label for name. Just you are assigning a particular label, you have to mention label for name. This is a particular new tag we define in HTML5 only, okay. First of all, you have to create a particular form. Just you have to mention form tag. Create a new file. This is a particular new file. Okay, everyone, you have to press Ctrl N. Okay, and you have to create a new file. You have to mention HTML. This is a particular heading, title, my form. You have to mention any particular title and close this particular heading, okay. After that, you have to start body, DG color. You can set the color also, navy color, and background के लिए you have to mention text equal to white, okay. And after that, close body tag, close HTML tag here. After that, you have to create a particular form. In body tag, you have defined form, okay. You will define a particular form. Just you have to mention form tag, okay. आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, अपनी क्लास लेफ्ट मत करो। अपनी क्लास को लेफ्ट करेंगे तो आपका ही लॉस है, ओके। आपकी हर पर्टिकुलर टाइम में अटेंडेंस मार्क हो रही है। 2 आवर्स की क्लास है आपकी, लैब है आपकी, तो आपको अटेंडेंस अपनी प्रॉपर वे में जो करवाया जा रहा है आप नोट करो। साथ साथ कर सकते हैं तो साथ साथ करो। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, योर अटेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। Yes, you have to mention form tag and close this particular form tag, okay. Yes, first of all, you have to mention the form attributes and we can set the particular label. First of all, define the label for name. Enter name. आपको यहाँ पे क्लोज करना है लेबल टैग,
Okay, and after that, this is a particular label, and after that you have to define a particular table data जिसमें आप write करोगे. Okay, you have to mention input type equal to text. Okay, and after that you have to define BR means break row. Okay, and after that create another labels. First of all, save side by side. I will run this particular form and save this particular form 2.html. I am giving the name form 2.html. Form 1 yesterday I have created with same batch 1 students. Okay, just you have to run this particular form. Form 2.html. Okay, this is a particular form. This is a very simple form. Okay, अब आपको यहाँ पे क्या define करना है? Heading. Which type of form we are creating here? We are creating student form, employee form, pay slip. Which type of form? You have to mention the name for this. Okay, you have to define the label. You have to define a particular heading. Okay, just you have to mention font size equal to 6. Okay, and after that font size equal to 6, and student registration, your registration form. Registration form. Close this font tag. Okay, we can centralize this particular registration. You have to mention center tag and close center tag. Close this particular center tag. Okay, and after that, this is a particular, we have set font size. This is registration, for registration. Okay, and also you can set the font size for labels also, text also. Okay, set the size 4. And last में आपको इसके अंदर font को close करना. You have to close in last. Okay, this is a particular label. Yes, देखो, registration form, enter name. Okay, अब यहाँ पे इसके अंदर this is a particular input box. You can write something. You can input data. This is a particular label. Enter name is a label. Okay, we have defined label for name. अगर आपने label नहीं दिया तभी आपका run करेगा. सिर्फ enter name दे दो तभी चलेगा. कोई use ज़्यादा use नहीं है. Particular just in HTML5 this is a new label added. Just okay, पहले नहीं था. Just आप enter name करते तभी run करेगा. कोई problem नहीं है. बस आपको पता होना चाहिए कि label क्या होता है. Okay. After that, define a label for password. You can define just pass. Okay, and after that define full password. Enter password. This is a particular label. Close this label. Okay. Yes, this is a particular label. Okay, and after that you have to define input type equal to password. You have to mention type equal to password. Okay, you can define BR. Okay, this is a particular password, and after that you have to define email ID. Okay, तो आपको क्या मेंशन करना है? जस्ट यू हैव टू मेंशन एंटर ईमेल आईडी. लेबल का मैंने आपको बता दिया. ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया. यू कैन मेंशन लेबल फॉर ईमेल. ऐसे भी कर सकते हो या डायरेक्ट आप ईमेल लिख सकते हो. ईमेल आईडी डायरेक्ट दे दोगे. आफ्टर दैट यू हैव टू डिफाइन इनपुट टाइप. टाइप क्या होता है बेसिकली? टाइप मीन्स
which type of data you have to write. Input. Okay, आप पासवर्ड राइट कर रहे हो, टेक्स्ट राइट कर रहे हो. टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? Write numeric data, character data, any type of data we can write. Password means it displaying bullets. Okay, and email ID type equal to email. Email का proper way में correct email जाएगा. Okay, and after that you have to save this file and enter email ID. Okay, जैसे आपने यहाँ पे mention किया, मैंने अपना नेम दिया, आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे दे दिया रीता@. अभी एक्सेप्ट हो जाएगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि सेंड नहीं हो रहा डेटा. जैसे आप सबमिट पे यहाँ पे बटन क्रिएट करोगे, ओके, व्हेन वी क्रिएट ए बटन फॉर दिस फॉर्म, ओके, इट विल नॉट वर्क. ओके, प्रॉपर वर्क नहीं करेगा ये. जस्ट नेक्स्ट इज यू हैव टू राइट एड्रेस. ADDRESS. Okay, this is a particular address label. You have to define text area. You have to mention text area. Rows equal to 4. Okay, rows equal to 20 दे देते हैं. Next, calls equal to 4. देखो, इनपुट का मीनिंग क्या होता है? जो पर्टिकुलर इनपुट बॉक्स, we can write a particular single data. We can't enter data. Enter data means we can define a data in a single line, only single line. Enter key not press. Okay, when we are entering data in a particular rows and columns, you have to write address. Address में आपको mention करना है particular rows, columns. Okay, then you can define text area. बल्क में कोई पर्टिकुलर डेटा आपको राइट करना है, देन यू कैन सेट द एरिया फॉर दिस. ओके, टेक्स्ट एरिया रोज इक्वल टू 20. अकॉर्डिंगली वी कैन यूज साइज, अकॉर्डिंगली हम अपने अकॉर्डिंग यूज करेंगे. ओके, एंड आफ्टर दैट क्लोज टेक्स्ट एरिया. यू हैव टू क्लोज दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट एरिया. ओके, यस, मैंने यहाँ पे मेंशन किया एड्रेस. अब देखो इसके अंदर देखो, तो आपके पास रोज हमने दिया है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया शायद. देखो ऐसे आएगा आपका एड्रेस, आपको मेंशन करना है तो पर्टिकुलर आपकी रोज. For email ID and address, we haven't mentioned label. क्या चीज? लेबल मेंशन नहीं किया ना हमने इस दोनों के लिए. मैंने आपको बताया ना बच्चे, आपको मैंने बताया इसके अंदर लेबल आपको न्यू टैग है. ठीक है, वी कैन डिफाइन ए लेबल फॉर दिस. और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया कि हम ऐसे डिफाइन करते हैं तो कर सकते हो, अगर नहीं किया तभी चलेगा. ठीक है, पता होना चाहिए. वाइवा में पूछा जाता है व्हाट इज यूज ऑफ लेबल टैग. ओके, तो आपको लेबल टैग डिफाइन करना हो तो आप लेबल टैग यूज कर सकते हो. लेबल फॉर आप डिफाइन करोगे यहाँ पे एड्रेस, लेबल फॉर एड्रेस. ठीक है, एंड जब आपने लेबल डिफाइन किया यू हैव टू क्लोज दिस पर्टिकुलर लेबल टैग. ओके, यू हैव टू क्लोज दिस पर्टिकुलर लेबल टैग. क्लियर? बट इसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं लगेगा. यस, एवरीवन गॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट? Ma'am, I have a query. Yes. What is the value that we put in the label attribute for attribute? Sorry. For The attribute we are using for label, for what is the exact value we should put in it? Like we have labeled enter name as name, enter password as pass. you can define a particular name for this. Basically we have to display this particular label. Okay, we have to display this particular label. Just you have to give the name for this. You can define particular label for enter name. Password के लिए you can also set the enter password. Same, you have to write same or different. Okay, this is a particular label tag. You can. Sorry to interrupt, ma'am, but as per No, my knowledge, sorry. Yes. You can continue. Actually, I was Basically, saying
Now, Yes, Anjali. Yes. actually, I was saying, as per my knowledge, the value we put in the label for attribute is the name attribute's value of the input. Like if there is one more attribute called name for input, right? That we also use for data submission in backend. So the value we put in the name attribute should be the value in the for attribute of a label. So the system can correlate between the connection of the label, what label belongs to what input. Yes, you can particular set this particular same you have to write. You have to same or different write. Okay. Okay. Okay, ma'am. Anjali, yes, Anjali, very good point. Your valid point. Okay, you can mention accordingly. This is a particular basically new tag. Okay, you can add this particular label for. Label for define a particular labels. Okay, you can set the different or same you can write. Everyone got this particular point? Hello? No, ma'am. No. I haven't got it, ma'am. Kindly repeat. No, ma'am. No, ma'am. आगे चले या नहीं? मैम No. जो लेवल ये जो लेवल पे जो एड्रेस लिया है, Yes, please switch on your video. When you are asking something, please switch on your video. Please repeat, ma'am, the one for the code. मैम जो लेवल लिया है, लेवल का जो एड्रेस लिया है, वो बॉटम पे क्यों शो कर रहा है? वो बटन क्या? ये टेक्स्ट एरिया का बॉटम में शो कर रहा है. जरा आउटपुट दिखाइए. क्लियर नहीं हो आपका पॉइंट? क्या कह रहे हैं आप? टेक्स्ट एरिया के में जो एड्रेस लिया है ना, वो एड्रेस टेक्स्ट एरिया के लेफ्ट साइड में बटन पे शो कर रहा है. अच्छा, वो आपका बटन नहीं है, लेबल है वो आपका. नहीं, बटन पे हमारा नीचे बटन बॉटम में आ रहा है. अच्छा, बॉटम में आ रहा है ये. हाँ. ये पर्टिकुलर बॉटम में आएगा. जस्ट आपका यहाँ पे इसके अंदर क्या है, राइट कर रहे हो. जब आप इसके अंदर राइट करते हो ना कुछ भी, तो ये पर्टिकुलर जितने रोज एंड कॉलम्स मेंशन करेंगे आप, उसके अकॉर्डिंगली वो वहां पे सेट होता है. ठीक है, ये इसका पर्टिकुलर अलाइनमेंट ऐसे ही रहेगा. जितना आपका इसके अंदर मेंशन करेंगे उसके अकॉर्डिंगली. अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे मेंशन किया 6, ओके, उसके अकॉर्डिंगली वो नीचे जाएगा. ओके, इसको आप चेंज नहीं कर सकते. इसका अंदर मैं दूसरा स्टाइल बताऊंगी आपको, तो उसमें चेंज हो जाएगा. ठीक है, दिस इज नॉट प्रोफेशनल फॉर्म. Okay, we are creating this form, but this is a not professional form. We will create a particular form using table. Okay, after that we will create a particular form with table. Then we can create this particular form. This will create a particular professional form. Okay, just to understand all the particular points, label, input and other particular points. Okay. Yes, next you have to write. One thing, one thing actually, the label is actually used to know the system that what type of input we are going to insert, right? Yes. Label is actually used to know the system that what type of input is user going to insert. So yes. That is जो what पर्टिकुलर आप इनपुट कर रहे हैं ना, जो पर्टिकुलर आप इनपुट कर रहे हैं उससे रिलेटेड पर्टिकुलर लेबल क्रिएट हो रहा है. ओके, यू कैन डिफाइन ए पर्टिकुलर लेबल फॉर इनपुट डेटा. yes. ओके, इनपुट डेटा जो पर्टिकुलर, देखो, जस्ट वी हैव क्रिएटेड पर्टिकुलर फॉर्म. दिस इज ए पर्टिकुलर एंटर नेम. Enter name means we have created label for enter name. You have to write this particular input data. ओके, तो ये पर्टिकुलर किस पे डिपेंड कर रहा है? आपके लेबल पे. इट डिपेंड्स ऑन लेबल. एंटर पासवर्ड, इट डिपेंड्स ऑन पासवर्ड. दिस इज अ पर्टिकुलर लेबल एंड इट डिपेंड्स अपॉन लेबल आल्सो. ओके, so system can segregate each type of input yes, with the help of label. yes. Okay, thank you.
After that, you have to create a particular radio button. Okay, you have to mention label for gender. Label for gender. Okay, label for gender means you have to define a particular gender, male or female. You have to create a particular radio button for this. Input type equal to radio. Okay, we can define the name for radio button. We can define like R1 is a name for radio button. Okay, you have to mention male or female. We have created 2 radio buttons. Okay, 2 radio buttons we have created. Both names should be same. Okay, आपको यहाँ पे 2 buttons create करने हैं, रेडियो buttons. आपने नेम क्या देने हैं, दोनों के सेम देने हैं. चाहे आप यहाँ पे 10 buttons create करो तब भी नाम आपका सेम रहेगा. Because you have to select only one radio button at a time. Okay, आप इसमें अंदर अगर डिफरेंट नेम देते हैं तो ऑल द रेडियो बटन शुड बी सेलेक्टेड. उस टाइम में सिलेक्टेड होंगे, ऑल द रेडियो बटन विल सिलेक्टेड, बट देयर इज ए नो पर्टिकुलर पॉइंट. यू हैव टू राइट, यू हैव टू सेलेक्ट only one radio button at a time. Okay, and run this particular point. This is a particular male or female. Okay, आप यहाँ पे इसके अंदर चूज करेंगे मेल और फीमेल. दिस इज ए पर्टिकुलर रेडियो बटन फॉर, you have to create R1 and R1 you have to give the same name for all radio buttons. After that you have to select create checkbox. Sorry, Okay. why should we give R1 for same? Yes. Yes. Why should we give name R1 for both the button? This is a particular, we can select only one radio button, na? Okay, you have to select only one radio button. Okay, among them. That's why we have given same. That's why you have to given the single name. Okay. After that you have to define VR, break row for next, label for areas of interest. Okay, areas of interest. You can give the particular same name or different name. Like this is a particular label, areas of interest, the hobbies, you can mention the interest areas, you can give any label. Okay, and after that you have to create input type equal to checkbox. Type equal to checkbox. And you can also define the name for checkbox. You can define different names. Okay, this is a particular checkbox. ठीक है, हमारे एरियाज डिफरेंट हो सकते हैं, है ना. आपके एरियाज लाइक आपका एरिया म्यूजिक, डांस एंड स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, कुछ भी हो सकता है. बट आपका जो इसके अंदर रेडियो बटन होती है, रेडियो बटन में यू हैव टू सेट द सेम नेम, एंड एरियाज ऑफ इंटरेस्ट एंड चेक बॉक्सेस में यू हैव टू सेट डिफरेंट नेम फॉर चेक बॉक्सेस. ओके, just you have to mention the areas like music, yes, this is a particular C2 for another particular checkbox, music, dance, sports, computer, anything. You can mention the interesting areas. Okay. Save this particular point, and this is a we can select options. Okay, we can select all the options and any option you can select. But this is a particular radio button, we can choose only one option at a time.
Everyone got this particular point? This is a very, very important, this is basically Viva question. What is difference between Yes, ma'am. button and checkbox? Okay, everyone got this particular point? We can select Yes, ma'am. one option at a time in radio button. Okay, and in checkbox we can select multiple options. Okay. Okay. Yes. Next is Ma'am, why we can't use the closing tags for input field? yes, Neha. Ma'am, why we can't use closing tag for input? No, क्लोजिंग टैग नहीं है, आप इसका क्लोजिंग नहीं होता है इनपुट का, ठीक है? Okay. Yes. Next label is city. मतलब सेलेक्ट आपने करना है सिटी. आप लेबल भी क्रिएट कर सकते हो. जस्ट यू हैव टू मेंशन सिटी, सेलेक्ट सिटी. You have to write select. Okay, select, and you have to write the option. Option में you have to mention city and close this city. ये close this option side by side. Yes, close this particular select tag. Okay, we can also call this is a particular drop down box. Okay, this is a particular drop down box. Yes, this is a particular drop down box. Select city. We can set the any type of city. Clear? This is a particular drop down box. Everyone got this particular point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Next, you Yes, have ma'am. to write the particular. You have to write the particular. You can also set the option button, option group also. Okay. आपको इसके अंदर ऑप्शन ग्रुप सेट करने हैं तो ऑप्शन ग्रुप भी आप सेट कर सकते हो. ठीक है. देखो जैसे आपने यहाँ पे मेंशन करना है ओपीटी ग्रुप. ओपीटी ग्रुप में आपने यहाँ पे मेंशन करना है तो आप यहाँ पे ओपीटी ग्रुप के साथ आप मेंशन कर सकते हो. मैं आपको इसके अंदर एक चीज दिखाती हूँ. फॉर्म. Now, is it necessary to close the select? यस. But here it is. जैसे यस आपने मेंशन करना है ओपीटी ग्रुप लेबल इक्वल टू इंडिया. ओके. एंड ओपीटी साथ में आपका क्लोज करना है. यू हैव टू क्लोज दिस पर्टिकुलर ग्रुपिंग. वी कैन सेट द पर्टिकुलर यूरोप. जैसे मैंने यहाँ पे दिया यूरोप के लिए बेल्जियम, फ्रांस. ओके. तो आप अपने लेबल सेट करके इसके अकॉर्डिंगली अपना डेटा सेट करोगे. देखो मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने मेंशन किया ओपीटी ग्रुप लेबल इक्वल टू यूरोप, जिसके अंदर हमने मेंशन किए ऑप्शंस. दीज आर 2 ऑप्शंस. ओके. एंड ओपीटी लेबल और इंडिया. Please stay for 30 seconds. Yes. Close this particular OPT group. Don't disturb. Yes. These are 2 particular labels. We have defined 2 labels, India
एंड यूरोप। इसके अंदर आपको मेंशन करने हैं अकॉर्डिंगली कंट्रीज और ये पर्टिकुलर सिटीज। इंडिया में सिटीज आप मेंशन करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपके ग्रुप क्रिएट हो गए। ओके, बेसिकली ओपीटी ग्रुप इमेज एडेड इन HTML5। ओके, HTML4 का सिंपल टैग यूज करते हैं, पहले सेलेक्ट यूज करते हैं, लेकिन ये बेसिकली क्या आपका ओपीटी ग्रुप के अकॉर्डिंगली वी कैन सेट द लेबल्स फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ सिटीज। ओके, वी कैन सेट द इंडिया label and we can set the particular cities for this, and same we can apply other for countries. Clear? After that you have to close this particular, last में आपको close करना है select tag. Kindly show the output. Please note it down. One more thing, ma'am. What is the difference between the above label and this label? Form label? The label which we earlier mentioned in the form and this label in the OTP group. This is a particular select table. We can get जो आपका main difference है इसमें, ये तो आपका एक label है। Label का meaning क्या होता है? Just you have to define a particular label for main particular data. Okay, you have to define particular name for this is a particular label, these are particular labels. Okay, and this is a particular input data, you have to write something, and this is a just you have to write this particular label for mentioning the grouping part. Okay, just you have to mention the groups. आपने सिटी, जैसे आपने सिटीज दे दी, कंट्रीज दे दी, एक साथ सारी डिफाइन कर दी। मैंने यहाँ पे सब कुछ दे दिया, देखो इंडिया दे दिया, उसके अंदर दिल्ली, मुंबई, गोवा, शिरडी, बेल्जियम, फ्रांस, यूरोप, सब कुछ दे दिया, तो मिक्स हो जाएगा ना। Yes. So actually in earlier level we mentioned 4 to make the computer know that which type of input we are going to insert, but in this level you have to it is define not a particular input. Yes, you have to define a particular group, option group, and define the countries and particular cities accordingly. Okay. Next, you have to create a particular buttons. Before button, you have to, I am explaining some different thing, like, suppose this is a particular enter name, this is a label. Okay, suppose you have to set the gap between label and input. Then what will we do? In last class, I have explained. Yes. And backspace. And NBSP. %, NBSP. Non-BSP. NBSP. NBSP. Very good. You have to mention NBSP. कहाँ पे mention करोगे? After the label. यहाँ पे आपको देना है enter name Between the words. NBSP. NBSP. ओके, आपने यहाँ पे दिया Ctrl+C and Ctrl+V. 3 times you have to mention NBSP से आपका स्पेस आ गया, देखो स्पेस आ गया। अब देखो जैसे आपके पास है इनपुट टाइप इज ए एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट, ओके, एंड जस्ट यू हैव टू राइट प्लेस होल्डर, दिस इज ए पर्टिकुलर प्लेस होल्डर एंड यू हैव टू एंटर एनीथिंग। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया, आपने देखा होगा वेरियस टाइप्स के फॉर्म आप फिल करते हैं, एंटर योर नेम, यहाँ पे मेंशन होता है एंटर योर नेम, ओके। देखो यहाँ पे आएगा आपका एंटर योर नेम। देखो जैसे आप यहाँ पे मेंशन करोगे, मैंने नेम डाला, आपने यहाँ पे डाला इसके अंदर पासवर्ड, ईमेल आईडी, ओके, एंड जैसे आप यहाँ पे इसके अंदर मैंने मेंशन किया टाइप इक्वल टू ईमेल, ओके। ईमेल का मतलब आप यहाँ पे ये नहीं चल सकता जो मैंने डाला है, क्योंकि आपका भी फॉर्म जस्ट आप सिंपल फॉर्म क्रिएट करें, दिस इज ए क्लाइंट साइड फॉर्म, एंड बटन्स क्रिएट करते ही ऑटोमेटिकली आपका डेटा जो होगा कहीं जाएगा नहीं, जस्ट यहीं पर रहेगा, बट यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग इन वेल मैनर, ओके।
अब देखो मैं आपको इनपुट करना बता रही हूँ, बटन्स क्रिएट करना. जस्ट यू हैव टू क्रिएट ए पर्टिकुलर बटन्स. यू हैव टू मेंशन इनपुट. Input type equal to submit. Submit means you know The input that what the user has given. By clicking which we can capture all input. when we click on this submit button, action should be defined. Action means क्या होता है कि आपका अगर आपने फॉर्म में actions define किए तो actions will be worked. Okay, like reset means your form will be reset. All data आपका इसमें क्या होगा, जितना डेटा आपने किया वो सारा डेटा आपका रीसेट हो जाएगा. ओके, ब्लैंक हो जाएगा. Yes, we have created two particular buttons here, submit and reset. अब देखो जैसे ही आप यहाँ पे इसके अंदर कर रहे हैं, एक ऑप्शन होता है आपका यहाँ पे मेंशन किया जाता है रिक्वायर्ड. रिक्वायर्ड का मीनिंग क्या होता है, जब आप यहाँ पे इसके अंदर जब तक डेटा आप डालोगे नहीं मैंडेटरी वो आगे नहीं जाएगा. ओके, दिस इज अ पर्टिकुलर रिक्वायर्ड ऑप्शन. देखो जैसे आपने यहाँ पे डाला, मैंने यहाँ पे सपोज कुछ भी नहीं डाला, ठीक है, आपने यहाँ पे डाल दिया और सबमिट कर दिया. अब देखो यहाँ पे आपका एरर आएगा, प्लीज एंटर योर नेम, प्लीज फिल आउट दिस फॉर्म, दिस फील्ड. व्हाई वी हैव मेंशन्ड हियर रिक्वायर्ड ऑप्शन. रिक्वायर्ड का मीनिंग यू हैव टू राइट. आपको यहाँ पे कंप्लीट राइट करना है. जो भी आप इसमें लिखोगे नहीं तब तक वो नेक्स्ट मूव नहीं होगा. ओके, मैंने यहाँ पे जैसे आप सबमिट करोगे तो ईमेल आईडी, दिस इज नॉट करेक्ट ईमेल आईडी. ओके, रीटा इज मिसिंग @. मैंने यहाँ पे @ भी डाल दिया लेकिन फिर भी वो मिसिंग है, वो आगे मूव नहीं करेगा. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है कि आपने इसको जब तक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन नहीं जाएगी तब तक वो वर्क नहीं करेगा. एवरीवन गॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. मैंने यहाँ पे इसके अंदर दे दिया लेकिन ये आपका दिस इज ए पर्टिकुलर क्लाइंट साइड फॉर्म, कहीं जाएगा नहीं. ठीक है, अब एक चीज और देखो, मैंने यहाँ पे मेंशन किया फॉर्म एट्रीब्यूट्स. एक आपके पास होता है HTTP मेथड. दिखा देना प्लीज. यस, एक और कोड दिखा दो मैम. कोड दिखा दूं? यस, देखो प्लेस होल्डर मैंने यहाँ पे दिया है, प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम एंड ऑप्शन दिया है मैंने यहाँ पे, एट्रीब्यूट दिया है इसका रिक्वायर्ड. You can set this particular all the particular points. कहीं भी आप सेट कर सकते हो. ओके मैम. यस, अब देखो नेक्स्ट फॉर्म एट्रीब्यूट्स. HTTP मेथड. HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ओके, इसमें आप यूज करते हैं गेट एंड पोस्ट. टू पर्टिकुलर थिंग्स वी हैव टू mention when we create any type of form method equal to get. एक होता है आपका get, एक होता है आपका post. And you can set the action, we can define the particular action. Like मैंने यहाँ पे कोई भी action mention किया, ठीक है. Action का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं submit पे क्लिक करेंगे, when we click on submit button, action will work. एक्शन कैसे वर्क करेगा, आपको यहाँ पे इसके अंदर कोई भी साइट नहीं मेंशन करना है जहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली वर्क करे. मैंने यहाँ पे मेंशन किया pcpi.pcklgate.com. ओके, एक्शन इक्वल टू दिस एंड दिस. व्हेन वी सेव दिस पर्टिकुलर एंड रन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. ओके, अभी मैंने यहाँ पे इसके अंदर सबमिट किया तो ये तो आपको डालना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड दिया है. अब जैसे ही सबमिट करोगे ऑटोमेटिकली pcpi.pcpi वेबसाइट पे दिस इज एक्शन. ओके, दिस इज अ पर्टिकुलर एक्शन इज वर्किंग. ओके, एंड देखो यहाँ पे मेंशन किया है गेट एंड पोस्ट.
गेट मीन्स क्या होता है, जो पर्टिकुलर मेथड आपके ये टू मेथड्स व्हेन वी आर यूजिंग ओनली प्राइवेट पर्टिकुलर पर्सनल डेटा, लाइक पर्सनल डेटा मतलब आप जस्ट आप किसी अपने को ही दे रहे हो डेटा, तो गेट मेथड आप यूज कर सकते हो. ओके, जब आप पर्टिकुलर यूज कर रहे हो सम सेंसिटिव वर्क, सेंसिटिव डेटा पे वर्क कर रहे हो, तो पर्टिकुलर आप यूज करोगे पोस्ट मेथड. ओके, क्योंकि जो आपका पोस्ट मेथड होता है ना, पोस्ट मेथड का जो डेटा होता है वो पर्टिकुलर डेटा आपका लीक नहीं होता. ठीक है, जो पर्टिकुलर डेटा एज इट इज आपके पास बहुत सिक्योर है, ये बहुत सिक्योर. ओके, व्हेन वी आर यूजिंग सेंसिटिव डेटा पे वर्क कर रहे हैं, देन वी कैन यूज पोस्ट मेथड. ओके, एंड गेट मेथड आपका क्या है इसके अंदर, जो पर्टिकुलर आपका सिंपल वर्क करना हो आपने अपने लिए, देन वी कैन यूज गेट मेथड. ओके, एवरीवन गॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. आपने डेटा किसी को देना हो, दिखाना, यूज Can you repeat for that particular PCTI one? हाँ, अगर आपने डेटा किसी को दिखाना है कि मेरे को जो मैं फिल कर रहा हूँ पूरी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो, देन यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर गेट मेथड. एंड आपको किसी को नहीं दिखाना, ओके, यू डोंट शो एनीथिंग, देन यू कैन यूज पोस्ट मेथड. एंड एक्शन में यू कैन मेंशन एनी पर्टिकुलर साइट नेम. ओके, व्हेन वी क्लिक सबमिट बटन एंड ऑटोमेटिकली आपका ट्रांसफर हो जाता है. ओके, एक्शन बेसिकली वर्क करेगा. क्लियर? सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? हेलो, Yes, ma'am. एनी डाउट? कोई डाउट तो नहीं? No. Yes, ma'am. Action, how to work action? हाउ टू वर्क Action. एक्शन? एक्शन मैंने अभी आपको बताया. एक्शन तो आपका हर सब में यूज होता है, चाहे आप JSP कर लो, चाहे जो मर्जी कर लो. एक्शन का मीनिंग जो आप डिफाइन करोगे लिंक, वो एज इट इज लिंक आपका ट्रांसफर हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी साइट दे दो, एक्शन ऑटोमेटिकली वर्क करेगा. क्लियर? चलो आगे चल रहे हैं हम. मैंने आपको अभी सिंपल फॉर्म बताया, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है अभी हमने. ठीक है, दिस इज ए वेरी सिंपल फॉर्म, दिस इज नॉट प्रोफेशनल फॉर्म. Okay, now I am showing form. Yesterday we have created a particular form table. देखिए, मैं आपको इसके अंदर बता रही हूँ, दिस इज अ पर्टिकुलर प्रोफेशनल फॉर्म जो हम मेन क्रिएट करते हैं, इस टाइप का फॉर्म क्रिएट करते हैं. ठीक है, ये वाला फॉर्म आता बनाते हैं. एक और फॉर्म भी दिखाते हैं आपको. आपने जब भी फॉर्म देखा होगा ना, ये वाला फॉर्म देखा होगा. ठीक है, ये पर्टिकुलर फॉर्म जैसे आपने सबको, these are two labels, basically these two labels, and this is the particular data you have to input, required option या any option, you can set anything but using table. Okay, जो मैंने अभी आपको फॉर्म बताया है, वो पर्टिकुलर फॉर्म जो है हमने अभी बनाया था लास्ट, वो पर्टिकुलर फॉर्म जस्ट आपको पता होना चाहिए ऐसे फॉर्म बनते हैं. लेकिन आपका मेन जो फॉर्म बनता है वो कैसे बनता है? आपका टेबल के थ्रू. क्लियर? आप टेबल के थ्रू फॉर्म बनाते हो. अब टेबल के थ्रू फॉर्म कैसे बनेगा? कोई बताएगा? बता सकते हो कैसे बनाएंगे हम टेबल के थ्रू फॉर्म? यस, हम टेबल में इनपुट वाला डाल देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन टेबल. सबसे पहले आपको टेबल मेंशन करना है. टेबल बॉर्डर, यू कैन सेट द बॉर्डर विड्थ. आफ्टर दैट यू हैव टू सेट द पर्टिकुलर फॉर्म. फॉर्म के अंदर आपको डिफाइन करना है. ठीक है, चलिए फटाक से मैं बता देती हूँ आपको, लेकिन पूरा नहीं करेंगे उसको, जस्ट मैं आपको आइडिया दे रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेट द हेडिंग्स. ये तो कर ही लोगे, है ना. अब मैं देखो यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ बॉडी. आपको क्या करना है इसके अंदर? यू हैव टू पर्टिकुलर सेट द बॉडी HTML, close this particular, and you can define a particular form. First of all, you have to define a table. Border, you can set the width and close this particular table tag. Okay, side by side you have to close, and after that you have to set a particular form.
close form tag. Yes. First tag is registration form. You have to mention the particular for TR. TR means table row. You can set the table heading. You have to mention the call span. Call span equal to 2 because 2 headings are there. Okay. Registration form. After that, close TH. Okay, you can set the centralize. आपको सेंट्राइज करना है तो आप सेंट्राइज करने के लिए सेंटर टैग ऐड कर सकते हो. Okay. Close center tag. Okay. After that, close this TR tag. After that, you have to set the again TR. अब मैं यहाँ पे इसके अंदर मेंशन कर रही हूँ TD. देखो जो पर्टिकुलर आपको TD और TH क्लियर हो गया होगा. TD और TH का मतलब क्या होता है सबको क्लियर है. तो TD आप कभी आपको बोल्ड करता है. वो TH का मतलब क्या होता है टेबल हेडिंग. आपको डिफाइन करना है बोल्डनेस. अगर आपने TD भी दे दिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट यू हैव टू राइट एंटर नेम. ओके. And after that again TD, you have to define the input. Input type equal to text. Type equal to text. And close this TD tag. Close TR. Okay. After that again set the TR, TD. Enter password. Close TR, TD. समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Hello everyone. Hello. Hello. Yes, ma'am. Okay, thank you so much. Input type equal to, just you have to mention a particular table styles. टेबल स्टाइल के अंदर आपको अपना डेटा इनपुट करना है. उसके अंदर इनपुट टैग अप्लाई करना है. ओके. पासवर्ड यू हैव टू मेंशन द टाइप इक्वल टू पासवर्ड. ओके. यस. तो दिस PR. आई एम सेविंग दिस पर्टिकुलर फॉर्म. आई एम गिविंग द नेम P1F1. P1F1 dot HTML. P1F1.html. Okay. Yes, P1F1. Yes, this is a particular form. Just you have to mention registration form, enter name, password, email ID, address. आपको यहाँ पे इसके अंदर फॉर्म क्रिएट करना है, कंप्लीट करना है. कर लोगे? Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am. Okay. Very good. You have to complete this particular form. And आपको इसके अंदर 3 फॉर्म्स क्रिएट करने हैं. ठीक है. आपको वेरियस टाइप की जो मैंने आपको टेबल्स बताई है, आपको टेबल्स क्रिएट करनी है. नेक्स्ट जो क्लास होगी I will check the particular tables and 3 forms. Student form, employee form, and 1 traveling form. Okay, another traveling form. You have to create 3 particular forms. Accordingly, you can set the data. You can change the particular format accordingly. Clear? Clear, ma'am. Can you show the output of this? Student form, employee form, and what? Traveling form. We can give any number of inputs, right? Any number of fields. You can set any number of fields and you can create a particular form. Professional form. You have to create professional form, table with form. Okay? Yes. Next is frame in HTML. Okay? अब देखो मैं आपको फ्रेम बता रही हूँ. फ्रेम को बड़े ध्यान से देखिएगा. हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं होता है लेकिन टॉपिक्स बहुत सारे होते हैं. ठीक है. टॉपिक्स को कवर करने के लिए हमारे पास उसी हिसाब से टाइम ज्यादा नहीं है. लेकिन ये कि आपके पास
टाइम की लिमिट ये है कि आपके पास और नहीं है, ओनली सैटरडे एंड संडे क्लास होती है। मैम पीपीटी भेज दीजिएगा, खुद पढ़ लेंगे हम लोग। कोई बात नहीं, वीकडेज में हमारे पास टाइम नहीं होता। ओके, पीपीटी तो भेज दीजिएगा। फ्रेम इन HTML। देखो, browser window we can in browser window we can show only single web page. We can show only table, we can show only form. Okay, we can set images, but we can't show each and everything. But this is a very good particular we can create a particular form. You can frame are used to divide your browser window into multiple sections, where each section can load a separate HTML document. Suppose you want to show a particular table, particular images, particular forms, okay, any type of links. So we can create a form. Multiple sections इनमें आप डिवाइड कर सकते हो अपनी ब्राउजर विंडो को। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत यूजफुल टॉपिक है। ओके, A collection of frames in browser window is known as a frame set. Okay? अब देखो, creating a form. How to create a particular form? कैसे आप फॉर्म को क्रिएट करोगे? स्टूडेंट अब एंटर कर रहे हैं। बहुत अच्छा। नो क्या दीपक कुमार? Yes, you have to mention for creating a particular frame, you have to mention frame set. Okay, frame set and rows attribute. Rows attribute, you have to mention creating a particular rows frame, horizontal frame. ठीक है, अब देखो मैं आपको क्रिएट करके दिखाती हूँ फटाफट से। New particular, you have to mention. Create a new table, new file. Yes, new file. अब देखो यहाँ when we are creating a particular frame, you don't need to mention body tag. Okay, आपको body tag include नहीं करना। आपका frame अगर आपने body include कर दिया तो frame कभी नहीं बनेगा। Okay, just you have to mention HTML and close HTML and have to start directly. You have to start. Just you have to mention frame set rows. We are creating frame. We can divide a particular window horizontally or vertically. Horizontally, you have to define the particular attribute rows. Rows equal to, जब आप अपनी स्क्रीन को डिवाइड कर रहे हो इन 2 पार्ट, जस्ट यू हैव टू मेंशन 50% 50%। ओके, आपने अपनी स्क्रीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ओके, कैसे डिवाइड किया? एरिया आपके पास क्या है? 50% 50%। Yes, this is a particular frame, this is a particular browser window. When we are creating a particular frame like this, just you have to mention this is a particular 50% area and this is a particular another 50% area. Okay, अब आपको यहाँ पे मेंशन करनी है अपना HTML डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपने टेबल दिखा दी, यहाँ पे अपना फॉर्म दिखा दिया। ओके, इससे आपकी स्क्रीन डिवाइड हो गई। We can also define a particular column wise. You have to define calls. Calls के लिए आपको मेंशन करना है, ये आपका होगा 50% और 50% एरिया। ओके, just you have to mention the frame SRC. Frame SRC equal to, you have to mention, मैंने अभी टेबल बनाई है तो टेबल 2.html. Okay, and another 50% area you want to show frame SRC equal to form 2.html. You have to mention the JPG file also. Okay, just you have to close this particular frame set. Take this particular frame 2.html. Frame 2.html. Okay, and run this particular program.
frame 2. Yes, frame 2.html. ओके आपने यहाँ पे इसके अंदर 2 पर्टिकुलर टेबल और पर्टिकुलर आपका फॉर्म विजिबल हो गया. ओके everyone got this particular point? Rows means we can define a particular browser window in 2 sections row wise. Okay, we can also set the star का मीनिंग क्या होता है आपका 50%. अगर आपने यहाँ पे मेंशन किया 3 स्टार तो 3 स्टार भी ले सकते हो, ऑटोमेटिकली वो अपना डिवाइड कर लेता है स्क्रीन. ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ओनली 50% क्या है स्टार. ओके आप सपोज करो यहाँ पे मेंशन कर रहे हो 2 स्टार n स्टार. ठीक है, इसका मीनिंग है जो सेकंड वाला पार्ट है उसके अंदर उसकी जो विंडो होगी वो डबल होगी फर्स्ट वाले की. ठीक है, आपके पास यहाँ पे हो गया डबल. ये आपका है इसके अंदर कितना हुआ 25%, ये 50% और ये 25%. ओके सेम यू कैन select the column wise. You have to mention calls for this. You have to mention calls. This is a particular 25, 50% और ये 25%. Okay. Yes. Clear? Hello everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा Yes, ma'am. अब आगे देखो. अब नेक्स्ट देखिएगा. अब आपने क्या करना है अपनी स्क्रीन को डिवाइड करना है. अब देखो अब मैं आपको नेक्स्ट बता रही हूँ. अब मेरे को एक नेस्टेड फ्रेम क्रिएट करना है. बड़े ही ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये. ओके देखो सपोज यू हैव टू क्रिएट ए पर्टिकुलर फ्रेम लाइक 50/50. मैंने 50/50 में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, अब मेरे को जो पर्टिकुलर सेकेंड वाला जो पार्ट है इसको मेरे को फर्दर रो वाइज में डिवाइड करना है. दिस इज ए पर्टिकुलर 50% एरिया. ओके इसको मैंने एज इट इज रखा. अब जो सेकेंड 50% है डिवाइड इन 2 पार्ट्स 50 and 50 इन रो वाइज. व्हाट विल वी डू? First of all, you have to create a particular 2 stars. Column wise, you have to mention star. Okay, this screen divided into column wise. Okay, after that, you have to mention SRC for 50%. Okay, ये SRC आपको mention करना है इसके लिए. SRC. Okay, SRC आपको mention करना है. This is a particular source for 50% area. After that, second 50% में आपको divide करना है. You have to mention another particular frame set. आपको यहाँ पे एक और frame set create करना है और वो frame set क्या होना चाहिए? Rows. Rows में आपको divide करना है. ठीक है, आप just you have to mention another SRC for this. SRC आपको completely mention करना है. अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे नहीं दे दिया, बिल्कुल ब्लैंक दे दिया, तब भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट आप स्टाइल बना दो. फर्स्ट आपको SRC मेंशन करना है. यू हैव टू मेंशन सेकेंड SRC and close frame set. You have to close this particular frame set. ठीक, आपको यहाँ पे इसके अंदर फ्रेम सेट को क्लोज करना. दिस इज ए पर्टिकुलर नेस्टेड फ्रेम. ओके वी आर क्रिएटिंग नेस्टेड फ्रेम. देखो ये स्टाइल का फ्रेम आपने क्रिएट किया जिसके अंदर आपके पास स्क्रीन डिवाइड हुई 50/50 में. फर्स्ट 50 के लिए आपने यहाँ पे मेंशन किया और सेकंड के लिए आपने यहाँ पे अपनी स्क्रीन को फर्दर डिवाइड किया इन रो वाइज. And you have to mention the particular source for this. Okay? Yes. Everyone got this particular point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बताइए. Yes, ma'am. आया? Yes, ma'am. अब मैं आपको दे रही हूँ वर्क. ओके कैसे कैसे फ्रेम्स आपको बनाने हैं. देखो आपको क्या करना है, आपने अपनी स्क्रीन को देखो मैं आपको स्टाइल दे रही हूँ फ्रेम्स के. आपने सबसे पहले आपने डिवाइड किया 20%, 80%. ओके
After that you have to divide a particular this type. Okay, इनको further divide करना है in column wise. After that next आपको create करने हैं frames. अब मैं छोटे छोटे बनाती हूँ. Yes, देखिए अब आपको बनाने हैं इसके अंदर इस टाइप के फ्रेम्स. एक प्लस बनाना है. यस, हो जाएगा. अगर आपको एक आ जाए ना तो बहुत मजा आता है इसको करने में. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये. ओके, यस. अब देखिए नेक्स्ट, जहां तक आपका हो गया ये फ्रेमिंग पार्ट. नेक्स्ट आप करेंगे इसके अंदर सेट द टारगेट. अब मेरा टारगेट वाला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज्यादा यूजफुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. टारगेट क्या करेंगे उसके लिए आपको मैं बता रही हूँ कैसे यूज करना है आपको टारगेट को. मैम ये फ्रेम को क्लोज नहीं करना. करा है मैंने फ्रेम को. फ्रेम सेट से होता है ना आपका क्लोज. नहीं, फ्रेम को भी क्लोज करते हैं ना. फ्रेम सेट को आपने फ्रेम सेट बनाते हैं, फ्रेम सेट से हम क्लोज भी फ्रेम सेट से दिया जाता है. नहीं, जो अंदर में फ्रेम दिया हुआ है इसके नीचे सेकंड अभी इसको नहीं करना. नहीं. लेकिन इसका होता है मेरे पास पॉप अप हो रहा था तो मैं सोचा कि क्या हो गया ये. नहीं, इसको नहीं करना. ओके. अच्छा देखो मैं आपको बता रही हूँ इसके अंदर टारगेट सेट करना. अब टारगेट सेट करने वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ओके, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा टारगेट वाला इसका मैं आपको जस्ट एग्जांपल जो मैंने क्रिएट किया हुआ है वही आपको मैं दिखा रही हूँ. ओके, देखो दिस इज ए पर्टिकुलर चैप्टर 1 फाइल. यहाँ पे आपने पहले मैं आपको रन करके दिखाती हूँ. I have created particular screen divide. This is a particular frame. Okay, screen divided into 25% and 75%, and also define a name for this. This is a left frame and this is the right frame. Okay, and this is a particular main file, linked file here. Okay, and when we click on chapter 1, this particular chapter 1's matter show in right frame. सेम चैप्टर 1 पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे राइट होता है. सेम चैप्टर 2 पे क्लिक करते हैं तो सेम मैटर आपका राइट में शो होता है. ओके, उसके लिए हमने यहाँ पे टारगेट सेट किया है. जब आप लिंक पे क्लिक करते हो तो इसका टारगेट इक्वल टू राइट. ओके, इसके लिए हमने देखो ये सिंपल 2 फाइल्स बनाई है. ये इसमें चैप्टर 1 फाइल है और चैप्टर 2 फाइल है. कुछ नहीं है, सिंपल हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 फाइल बनाई है. कुछ भी मैटर टाइप कर दो. मेन गोल क्या है, मेन का और फ्रेम का. मैं आपको ये दोनों फाइल दिखा रही हूँ. ये दोनों फाइल हैं, इनको दोनों को मैं आपको अंडरस्टैंड करवाती हूँ कि क्या है. आपको ऑटोमेटिकली आप खुद बना सकते हो. देखो देखो ये आपके पास क्या है. नॉर्मल आप करते हो AHREF इक्वल टू चैप्टर 1. ये चैप्टर 1 पे क्लिक करते हो और जस्ट हमने यहाँ पे कभी भी मेंशन करना है इसके अंदर. यू हैव टू मेंशन AHREF टारगेट. दिस इज ए पर्टिकुलर टारगेट एट्रीब्यूट. यू हैव टू मेंशन टारगेट जहां पे भी आप चाहते हो. मैंने यहाँ पे लेफ्ट और राइट दिया है. जस्ट यू हैव टू मेंशन राइट बिकॉज आई हैव क्रिएटेड 2 पर्टिकुलर फ्रेम्स. तो पर्टिकुलर आपने यहाँ पे मेंशन किया है फ्रेम नेम. नेम इक्वल टू लेफ्ट, नेम इक्वल टू राइट. मैंने अभी नेम नहीं डिफाइन किए थे. जो पर्टिकुलर अभी हमने फ्रेम्स क्रिएट किए हैं तो कोई पर्टिकुलर नेम डिफाइन नहीं किए. बट नेम से क्या होगा कि आप अपना टारगेट सेट कर सकते हो, कहाँ पे आपको डेटा शो करना है. ठीक है, तो हमने यहाँ पे मेंशन किया टारगेट इक्वल टू राइट. ऑटोमेटिकली चैप्टर 1's डेटा व्हेन वी क्लिक ऑन चैप्टर 1,
chapter 1's data display in target frame. Okay, same chapter 2 data target in right frame. Okay, and this is a particular frame file जिसके अंदर आपने main.html, this is a particular main file and you have to link this particular main.html, name equal to left, and you can set the blank src for second right frame. Okay, then name equal to right, and close this particular frame set. You have to click this particular both the files and you have to create this particular. आप इसको क्लिक कर लो दोनों फाइल्स को और आप करके देखिएगा. ओके ओके मैम. आप करके देखना, बहुत इंटरेस्ट आएगा. ओके मैम. ठीक है, आपको जो चीजें बताई है समझ आई है? यस. यस, मेरे को यस मैम. टाइम ही नहीं बचा मैम, मुझे आज आपको HTML5 भी करवाना था. टाइम इज ओवर नाउ. वही मैं कह रही, टाइम तो भागता रहता. मैंने कल वाले जो लास्ट सैटरडे वाला बैच है उनको करवा दिया. आप पीछे हो जाओगे. थोड़ा सा हिंट दे दूं? यस, देखो फर्स्ट जो टैग होता है आपका डॉक टाइप. डॉक टाइप टैग इज यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग विच लैंग्वेज एंड वर्जन द डॉक्यूमेंट इज यूजिंग. ओके, दिस इज ए पर्टिकुलर डॉक टाइप टैग. बेसिकली डॉक टाइप का यूज क्या होता है? व्हेन वी आर यूजिंग HTML5, देन आपने ब्राउजर को, जस्ट ब्राउजर को बताना होता है कि हम HTML, वी आर यूजिंग ओनली HTML5 टैग्स. ओके, तो जस्ट आपने यहाँ पे ऊपर मेंशन करना है यहाँ पे, और कोई यूज नहीं, जस्ट फॉर डिक्लेरेशन. ओके, दिस इज रेफर्ड टू एज द डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन. यू हैव टू मेंशन डॉक टाइप HTML. ओके, yes, I have created a button. Input type equal to button. In HTML5 you have to write button tag. आपको क्या राइट करना है? बटन, नेम इक्वल टू बटन, टाइप इक्वल टू बटन. जैसे मैं कोई सबमिट बटन, सिंपल बटन बना रहे हैं, जैसे मैंने दिया क्लिक हेयर. ओके, दिस इज ए पर्टिकुलर सिंपल वैल्यू शो होगी, जो पर्टिकुलर वैल्यू आती है. अगर आप कोई स्पेसिफिकली सबमिट बटन बना रहे हैं, जस्ट यू हैव टू राइट बटन, टाइप इक्वल टू सबमिट, एंड सबमिट इज ए वैल्यू, एंड क्लोज दिस बटन टैग. यस, क्लियर हुआ? Yes. हेलो. यस. यस. आपको राइट करना है बटन टाइप इक्वल टू सबमिट. ओके, जैसे मैंने अभी कोई पर्टिकुलर फॉर्म बनाया, तो जस्ट यू हैव टू राइट, डोंट राइट इनपुट, जस्ट यू हैव टू राइट बटन टाइप. दिस इज ए वेरी सिंपल. इनपुट के लिए आपको इनपुट करना है, तो बटन के लिए आपको टाइप देना है, विच टाइप ऑफ बटन वी आर क्रिएटिंग, सबमिट बटन और रीसेट बटन, एंड जस्ट यू हैव टू मेंशन वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर tag. Okay, and next tag is embed tag. अब embed tag क्या होता है? मान लो मेरे को कोई पर्टिकुलर JPG फाइल देखनी है, वीडियो मेंशन करनी है, then we can use embed tag. Embed tag is used to embed an external document in an HTML file, which can be any application, multimedia. Okay, any type of कंटेंट. अब मैं आपको एम्बेड का एग्जांपल दिखाती हूँ. देखो, मैं आपको एम्बेड का एग्जांपल भी शो कर रही हूँ. एम्बेड टैग जो होता है, बेसिकली आप इसके अंदर कोई पर्टिकुलर JPG पिक्चर शो कर सकते हो, कोई वीडियो शो कर सकते हो. ओके, लाइक मेरे को कोई वीडियो दिखाना है, देन वी कैन यूज एम्बेड टैग. आपको कैसे लिखना होता है इसके अंदर? एम्बेड टाइप. इमेज शो कर रहे हो, लाइक JPG इमेज, यू हैव टू मेंशन इमेज ऑब्लिक JPG.
and SRC you have to mention the source for GPG file and you can set the width and height. आपको area define करना and after that you can set the embed tag for video. Okay, you have to mention type equal to video webm source video.mp4 फाइल जो स्मॉल छोटे शॉर्ट वीडियोस होती हैं तो वो आप शो कर सकते हो. ठीक है, वैसे तो वीडियो टैग भी आता है, वीडियो टैग से वीडियो भी शो कर सकते हो एंड वी कैन सेट द विड्थ एंड हाइट फॉर वीडियो. ओके, समझ आ रहा है? ऊपर से जा रहा है? यस, समझ आ रहा है, ऊपर से भी जा रहा है, साउंड भी जा रहा है. नेक्स्ट टैग इज nav टैग. ओके, nav टैग क्या होता है? nav टैग इज यूज्ड टू डिफाइन द नेविगेशन लिंक्स इन द HTML. देखो लास्ट टाइम मैंने आपको एक वर्क दिया था, असाइनमेंट दिया था, है ना, जिसके अंदर आपको क्या करना था, वेरियस टाइप के टैग्स क्रिएट करने थे. ओके, इन HTML5 में न्यू टैग ऐड हुआ है nav टैग फॉर नेविगेशन लिंक्स फॉर क्रिएटिंग टैग्स. यू हैव टू मेंशन nav टैग में आपको मेंशन करना है nav और आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया लाइक HTML, CSS, JavaScript. ओके, एंड आपने यहाँ पे ना लिंक डिफाइन कर दिया, AHREF इक्वल टू लिंक दे दिया ब्लैंक, मतलब आपका HTML जाएगा तो नहीं, कहीं वर्क नहीं करेगा, बस एक हाइपर लिंक क्रिएट हो गया. ओके, AHREF इक्वल टू ब्लैंक एंड क्लोज दिस पर्टिकुलर एंकर टैग एंड आफ्टर दैट आई हैव क्रिएटेड particular pipe symbol here. Okay, तो pipe symbol से separations हैं, these are separations. Okay, and close this particular nav tag. And next tag I have already defined option group. Option group मैंने आपको define कर दिया, बता दिया कैसे आप यूज करते हो. ठीक है, दो टैग और मैं आपको बता देती हूँ एक बार. ये वाला span, meta tag and div tag we will cover in next class. Okay, मैं आपको वीडियो टैग और बता देती हूँ. देखो वीडियो टैग क्या होता है बेसिकली. वीडियो टैग में क्या होता है, वी कैन डिफाइन एनी टाइप ऑफ वीडियो. ओके, आप कोई भी पर्टिकुलर वीडियो शो कर सकते हो. मैंने एम्बेड टैग तो आपको बताया ही है, एम्बेड टैग से तो आप कर ही सकते हो. ओके, एम्बेड टैग से भी आप कर सकते हो. बेसिकली वीडियो टैग इज परफेक्ट फॉर एनी टाइप ऑफ डिस्प्लेइंग एनी टाइप ऑफ वीडियो. Okay, then how to add a particular video? This is a very simple. You have to write, first of all you have to write video tag, define the width, height, controls, autoplay. Okay, autoplay means क्या होता है, automatically play करेगा. Okay, ये controls है, automatically play करेगा ये. Okay, after that you have to mention source के लिए you have to define the source SRC and clip1.mp4. okay, small clipping you can define. type equal to और इसके अंदर you have to define audio. देखो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया ऑडियो, लेकिन वर्क करिए आप यहाँ पे वीडियो डॉट यहाँ पे मेंशन करोगे MPG. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेगा. ऐसे आप कोई भी ऑडियो भी ऐड कर सकते हो. अगर आपको कोई डिफाइन करना है तो ऑडियो भी आपकी ऐड हो जाती है. What is big good? देखो ऑडियो के लिए आप कोई भी ऑडियो ऐड कर सकते हो. ओके, आप इसमें कोई भी ऑडियो वीडियो ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग जो पर्टिकुलर डेटा है उसके अकॉर्डिंग. यस, आप सबको क्लियर हुआ जो मैंने आपको बताया? एवरीवन गॉट दिस पर्टिकुलर थिंग्स, ऑल द टैग्स? Yes, ma'am. Yes, any doubt? आपको कोई डाउट है किसी को किसी चीज में? Everyone please switch on your video.
बहुत ज्यादा हो गया है ना, ऊपर से चला गया या अंदर गया? काफी अंदर भी गया, काफी ऊपर से चला गया। एक बार रिवाइज करने पे पता चलेगा कि कहाँ पे गैप है। तो it may be we will ask questions in next time. Yes, you can ask any question. Okay, आप पूछ सकते हो। ओके, और इसके अलावा मैंने आपकी असाइनमेंट, जो लास्ट असाइनमेंट मैंने चेक नहीं करी आप सबकी, है ना, इतना टाइम नहीं होता, लेकिन मैं आपकी चेक करूंगी असाइनमेंट्स। ओके, कैन यू प्लीज गिव मी द फ्रेम पेज? Okay. The common folder where we should paste the file. Can you please share? Yes, मैं एक बार डिस्कस करूंगी, ठीक है, एक बार मैनेजमेंट से डिस्कस करके आफ्टर दैट आई विल, कि कोई ना कोई जो पर्टिकुलर आप सबकी जो फाइल्स होती हैं तो मैं जिसमें आपका देख पाऊँ। ओके, जो पर्टिकुलर मैं आपको टास्क दे रही हूँ, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि मैं करवाऊँ भी और एक स्टूडेंट का मैं चेक भी करूँ। लैब होती है तो प्रॉपर वे में चेक होता है आप सबका वर्क। ओके, Yeah. In that share folder we can create our folder and we can submit our yeah. I can understand your point. Okay, I have given some assignments to you today for today class के लिए आपको मैंने assignment mention किए हैं। Yes, anyone can tell? Neha? Yes, Neha. Login sound. नेहा यादव, परमजीत, मैंने कोई असाइनमेंट दिए अभी? यस मैम। यस Yes, ma'am. कौन सी दी है मैंने असाइनमेंट्स? We need to create 3 forms with tables. Assignments, which assignments I have given today class? Yeah, definitely you have given us to create a table of inputs of students and what called I have travel related. Yeah. I have given 3 particular forms. You have to create 3 forms. Okay, you have to create 2 tables of different styles. Okay, and you have to create various types of frames. ओके, आपको ये सारी प्रैक्टिस करनी है। ओके, ऑडियो वीडियो टैग, आई हैव एक्सप्लेन एम्बेड टैग। ओके, तो आपको जो मैंने करवाया ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू प्रैक्टिस एंड सॉल्व द असाइनमेंट। ओके, आपकी इसकी पहले भी क्लास होती है? यस मैम, सुबह से लगे हुए हैं इसी में। Since Friday. From 9 o'clock ना लगे रहो। अभी तो फिलहाल तो यही रहता ही है। The question is, ma'am, we get only 2 days, Saturday and Sunday, and whole day occupied with this class. Then when we will going to create our assignments, because 5 days are the office duties days. Right. We have kids and we have to take the time for them also. Yes, this is a very big issue. अभी तो फिलहाल आप घर से क्लास ले रहे हो, मेन ये कि घर से ले रहे हो, नहीं तो BCTI में हम आपको वहीं पर रुकवा के रखते हैं, मेन ये भी था। अभी फिलहाल तो ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ, है ना, आपको घर से खाते पीते आराम से सोते क्लास ले रहे हो, है ना। लेकिन ये है कि नहीं मैम, में तो ऑनलाइन ही होगी ना क्लास। अभी फिलहाल तो ऑनलाइन ही है, लेकिन जब आप PCTI में आओगे, ओके, आने का जाने का सब टाइम लगेगा आपका, वहाँ पे हम रुकवा के रखेंगे आपको प्रॉपर वे में। अभी तो फिलहाल एंजॉय कर रहे हो आप घर से ही, है ना, फ्रॉम होम ओनली, देन यू कैन सब चलेगा। Assignment date will get postponement deadline. Yeah, 31st May is the last date, and whether it will be postponed or not, can you please? Maybe postpone. Maybe postpone. Okay. तो अच्छा होगा postpone हो जाएगा, ऐसा नहीं है, हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा। आप लोगों ने स्टार्ट तो कर दिया होगा ना बनाना? हाँ, धीरे धीरे।
फिर 31st में याद आ जाती है, फिर बंद हो जाती है, फिर इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट 31st में ही याद आ जाती है, फिर बंद कर देते हैं कि छोड़ो, होगी तो नहीं। 31st May, today is 15, स्टार्ट तो करो, धीरे धीरे बन जाएगा और हो जाएगा सबमिट। मे भी आपकी लास्ट डेट आगे जाएगी थोड़ी सी, तो एक्सटेंड तो होता ही है। गिवन अस मोटिवेशन, अब स्टार्ट हो जाएगी, अब स्टार्ट हो जाएगी। मार्क दिया अटेंडेंस को? यस, अटेंडेंस हो गई, मैंने ले ली अभी साइड बाय साइड। नेक्स्ट क्लास। Bye bye, Joy. Ma'am, bye. Okay, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Bye bye.